potential and electric potential electric potential energy। दिस द टॉपिक। देखो बाबू, इसके पहले मैंने जितना ये पढ़ाया है सबका एप्लीकेशन में डायरेक्ट यहाँ करूँगा, तो कीप दिस इन माइंड, क्लियर। मैं दोबारा नहीं बताने वाला कुछ भी, डायरेक्ट यूज करूँगा। यू आर गेटिंग और नॉट, आई एम नॉटिंग टू डू दैट विद दैट, क्लियर। सो तुम रिवाइज करो, घर पे पढ़ो, है कि नहीं। पिछला जो भी मैंने कराया डायरेक्ट यूज करूँगा मैं, और मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्लियर। एक बार करो, ढंग से करो, ये रूल होना चाहिए, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द क्रूशियल वन, ये वेरी क्रूशियल टॉपिक है, क्लियर, वेरी क्रूशियल। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर आगे के क्लास समझ नहीं आए, क्लियर। होल 5-6 चैप्टर में यूज होने वाला है ये। इवन इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी इसका एप्लीकेशन है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज जो पीछे पढ़ा था उन सबका एप्लीकेशन यहाँ है। इसका एप्लीकेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, फिर करंट का एप्लीकेशन मैग्नेटिज्म में है, क्लियर। फिर मैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन आगे है, क्लियर। दे आर रिलेटेड चेन बाय चेन, क्लियर। सो पीछे का जहाँ सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, सो कीप दिस इन माइंड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट विल डिस्कस potential energy and then we'll discuss electric potential. So first we'll discuss electric potential energy and then we'll discuss electric potential, clear. Electric potential, they are nothing much difference between the two, they are approximately same. Electric potential energy and electric potential, they are approximately same, clear। तो एक समझ आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बहुत मैंने 11th में बताया था। Potential energy comes into picture when there is a interaction between the particle. Potential energy comes into the picture when there is a interaction between the particle. So potential energy comes into picture when there is an interaction between the particles of the system. So if there are two or more than two particles in a system, if there are two or more than two particles in a system, and if they are interacting, then the system will have some potential energy, clear। if there are three particles, particle A, particle B and particle C, clear। So they are forming the system. So particle A, B and C are forming the system. So clear, forming the system. So due to interaction they have some energy due to this. So potential energy comes into picture when there is an interaction between the particles of the system. Means if they are interacting, A and B interaction means there is a force between A and B, B and C are interacting means there is a force between B and C, A and C are interacting so there is a force between A and C. So if the particle of the system are interacting, there is a potential energy, मतलब यहाँ interaction हो रहा है बाबू, तो यहाँ potential energy आएगा, यहाँ potential energy आएगा, clear। So potential energy is the energy stored in the system. Potential energy is the energy stored in the system due to its configuration। देखो this is the configuration, A here है, B यहाँ है, C यहाँ, this is the configuration। So due to this configuration there will be some energy stored in this system and that is the potential energy। So potential energy is only due to interaction between the particle, मतलब interaction between the particle is the responsible for the potential energy, clear। And if there is a configuration there is a potential energy, and you always
tell the potential energy of the system. You can't tell the potential energy of the particle. This is the system. A and B, A, B and C are the particle of the system. Clear? So you can't say that potential energy of A, potential energy of B, potential energy of the C. Wrong. You'll have to say that potential energy of the system, not पार्टिकल. कभी भी ऐसा लोग बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. पोटेंशियल, मान लो कि ये बॉल है और ये यहाँ ये दिस इज द सरफेस और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाए तो बोल देते हो कि यहाँ पर आया इसका पोटेंशियल दिस इज एच. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज एम जी एच. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज एम जी एच, व्हिच इज fully wrong. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड द अर्थ, नॉट बॉल. तो कैलकुलेशन करने के लिए या कहीं भी जैसे तुम लोग होता है ना, कहीं स्पीड और वेलोसिटी सेम ले लेते हैं. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ देन द वेलोसिटी एंड द स्पीड आर सेम. बट इफ यू आर डीलिंग डीपली दे आर डिफरेंट थिंग. सिमिलरली क्वेश्चन करने के लिए तुम बोल देते हो कि mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल व्हिच इज एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये बोल देते हो. लेकिन अगर अपने लेवल पे बात करें सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर द सिस्टम, नॉट फॉर द पार्टिकल. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है, पार्टिकल का नहीं होता है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा वही इसका होगा, ये यानी कि तीनों का कंट्रीब्यूशन है ना. दे आर इंटरेक्टिंग ना. इफ देयर इज अ पार्टिकल A and the particle B and they are interacting, so what, there is interaction, is there is potential energy. तो किसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका या इसका? नहीं, दोनों का. A and B are participating in the interaction ना. So the potential energy will be of A and B, not only A and not only of B only. Clear? So potential energy कभी सिंगल पार्टिकल का नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है. So you can't, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, this is the right statement, and potential energy of the particle, this is the wrong statement. This is a wrong statement. Clear? So लिखो. कर लिया बाबू? गुड. तो मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा, इसलिए कि 11th में तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा. आई यूज द डायरेक्ट टेक्निक एप्लीकेशन फ्रॉम क्लास 11. सो व्हाट योर पोटेंशियल एनर्जी PE is equal to change in potential energy means if there is a particle A and there is a particle B, so and the separation is R, so let us assume there are charged particles, so Q1 and Q2, so force between them F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So this is the force. Let us say this is R1. So what? This is the R1. So this is the force when one configuration is this. Now if you are changing the configuration, so what? अगर मान लो the Q1 are positive, Q1 and Q2 are positive, means the force between them is repulsive. They are trying to repel each other. Now you are trying to bring them closer. Clear? पास मिलाना है. So the force between the two Q1 and Q2 is in this direction. They are repelling far apart. और तुम्हें इसको पास में लाना है. So you have applied force which is approx equal to this or slightly larger than this ना. इसके इक्वल है, इससे ज्यादा थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे तब तुमको पास ले आओगे. Means you are applying force. Let us say you are displacing dr distance. So you are doing some work ना. मान लो इसको पास लाने के लिए तुमने dr डिस्प्लेसमेंट किया तो तुमने कुछ वर्क किया ना. अब वो वर्क कहाँ हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा. और फिर जैसे ही छोड़ेगा क्या होगा, उस एनर्जी से ये फिर दूर भागने की कोशिश करेगा. Means if you are changing the configuration, if external agency is changing the configuration, it is doing some work against the interaction between the two particle ना. against the interaction between the two particle, मतलब बाबू सारा काम इंटरेक्शन का ही है. अगर इंटरेक्शन नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी आएगा नहीं. मान लो कि दे आर टू स्ट्रेंजर A and B. क्लियर? दे आर स्ट्रेंजर. तो इसको दूर लेके जाओ. मान लो ये इधर चला जाए, लंदन चला जाए, अमेरिका चला जाए, क्या कोई रोएगा? क्या नहीं रोएगा ना. बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द देम, सो देयर इज नो एनर्जी इन बिटवीन द देम. उनके पास कोई एनर्जी नहीं है तो तुम कहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल, देयर आर टू फ्रेंड A and B, C and D, देयर आर टू फ्रेंड C and D and they are friends. Now if they are moving far apart, तो क्या होगा? हो सकता है रो सकते हैं या लड़ सकते हैं तुम्हें कि हमें दूर नहीं करो. Means due to they are interacting, there is a force between the two. The force is attractive if they are friends. So what? अगर दूर लेके जाओगे क्या होगा? They
दे अपोज यू ना, ये अपोज करेंगे, ये फ्रेंड्स है और इनका टेंडेंसी क्या है कि पास आए, और तुम इनको दूर लेके जा रहे हो, सो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इंटरेक्शन ना, क्लियर। तो तुम फोर्स अप्लाई करके इनको दूर करोगे, जैसे छोड़ के क्या होगा, फिर ये पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इंटरेक्शन, देयर इज नो एनी इंटरेक्शन, देयर इज नो एनी पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। इंटरेक्शन इज द क्रूशियल पॉइंट, अगर इंटरेक्शन नहीं तो बहुत पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज स्टेटमेंट क्या था, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन मतलब समझते हो स्ट्रक्चर, अगर कॉन्फिगरेशन चेंज करोगे तो उनके बीच का इंटरेक्शन चेंज होगा, इंटरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, तुमने वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट इंटरेक्शन, क्लियर। और जो वर्क करोगे वही क्या होगा, स्टेट हो जाएगा। 11th में पढ़े हो ना ये सब चीजें, ये सब चीजें पढ़े हो ना, मैं रिकैप कर रहा जस्ट, पढ़े हो तो थंब अप करो, ये सब चीजें पढ़े हो 11th में, तो ये सब चीजें क्लियर हुआ है 11th में, हाँ ये सब चीजें मैंने रिकैप करवाया। सो डिफिनीशन में लिख देता हूँ डायरेक्ट, है कि नहीं, डिफिनीशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो होगा क्या बाबू, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, work done by external agency, so potential energy is the work done by external agency, and that is also minus of work done by conservative force. So there are two forces, if there is a particle A and there is a particle B, and you are, so there are two forces ना, मान लो कि if there is interaction, there is a conservative force between them Fc, and this is due to interaction, and this will be attractive or repulsive, और तुमने इसको चेंज करना है तो यू टू अप्लाई फोर्स F एक्सटर्नल ना, क्लियर, F एक्सटर्नल विच इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। सो व्हाट, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, Fc एंड F एक्सटर्नल विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट, वेक्टर साइन की बात करें तो Fc इक्वल टू माइनस ऑफ F एक्सटर्नल, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, conservative force and external will be in opposite direction, clear हुआ। so work done change in potential energy is equal to work done by external agency, and which is the minus of work done by conservative force. In mathematical form you can write delta U is equal to integration F external dot dr, and delta U is equal to minus AFC dot dr. This is the definition। ये कहाँ से है बाबू, यहीं से। in place of F external you can write minus of FC, minus of F से, इज दैट ओके। अब देखो मैंने ये बोला था कॉन्फिगरेशन चेंज करने के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसी के बराबर फोर्स अप्लाई करोगे, उससे थोड़ा सा बड़ा क्यों ले रहा हूं मैं, आई विल एक्सप्लेन लेटर व्हाई आई एम टेकिंग द टू फोर्स आर इक्वल। मान लो कि इफ द ऑब्जेक्ट ए एंड द ऑब्जेक्ट बी एंड द फोर्स इज बिटवीन देम Fc व्हिच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, क्लियर, एंड दे आर रिपेलिंग, द टू आर रिपेलिंग, 5 न्यूटन फोर्स और दे आर रिपेलिंग, क्लियर। इधर जा रहे हैं, अब तुम उनको चेंज करने के लिए क्या होगा, इससे यानी कि F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 5 न्यूटन ना, इससे बड़ा फोर्स अप्लाई करोगे तब क्या होगा, पास में आएंगे ना, मतलब योर F एक्सटर्नल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 5 न्यूटन ना, और ऑलवेज ग्रेटर देन Fc, तब ना उसका कॉन्फिगरेशन चेंज करोगे यार, योर F एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन Fc, देन इट इज पॉसिबल टू चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो मैंने ये कॉन्फिगरेशन चेंज करने के लिए F एक्सटर्नल जो होता है हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, Fc से, क्या लिख रहा हूं, Fc से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया है, इक्वल लिया है। व्हाई आई एम डूइंग दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर, क्यों मैंने इक्वल लिया, आ रही बात समझिए, ये क्यों इक्वल लिया मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, क्लियर। सो लिखो क्लियर, क्लियर बाबू, कर लिया, डन। सो हुआ क्या, मैंने बोला कि जो भी यहाँ लिए हो, if you have to change the configuration, तो कॉन्फिगरेशन चेंज करना है, so there are two forces Fc and F external। तो मैंने ये बोला कि तुम F external जो है Fc से ज्यादा नहीं ले सकते हो, हमेशा लोगों को इक्वल होगा, क्यों, तो सो मैं बता देता हूँ लॉजिक क्या उसका है कि नहीं। और देखो जो भी चीजें होती है ना, कभी ये भी बोलता है ना कि बेसिक शुड बी क्लियर, जो भी होता है ना वो डेफिनेशन में ही होता है, सीधा डेफिनेशन पे जाओ, यहाँ सोचोगे ना व्हाई वी आर डूइंग दिस, अगर ये सोच लिया ना यहीं से आ जाएगा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्लियर, व्हाई आई एम टेकिंग दिस नॉट दिस, क्लियर, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, अगर ये किया ना तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा,
क्लियर, देखो कैसे होता है। और डेफिनेशन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी का यही होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए, अगर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा तो लिखा होगा डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्लियर, एंड मूवमेंट शुड बी क्वासी स्टैटिकली और वेरी वेरी स्लो और सच दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल शुड नॉट चेंज। ये ऐड किया है, 3 ऐड किया हुआ, क्वासी स्टैटिकली यानी कि मोशन शुड बी क्वासी स्टैटिक और मोशन शुड बी नॉन एक्सेलरेटेड और देयर शुड बी नो एनी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन। ये पढ़े हो 3 स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट डाला था पढ़े हो। पोटेंशियल का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दिखा देता हूं मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन इन bringing a mass from infinity to a point in gravitational field, but the motions should be quasi-static और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और वेलोसिटी शुड बी remains constant ड्यूरिंग मोशन। मतलब ये बाबू कि यहाँ कोई ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये हैविंग मास ए और यहाँ इसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इस पॉइंट पे मान लो पॉइंट है और इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ लाना है, क्लियर, इस पॉइंट पे सो वर्क करोगे एंड दैट वर्क इज द, ये इनफाइनाइट है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट पे लाना है, क्लियर, एंड पॉइंट ए के पास क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू दिस, तो इस पे लाओगे तो क्या होगा, हो सकता है कि तुम बहुत फास्ट लेके आओ, मतलब हो सकता है कि यहाँ से इसको बहुत जल्दी में लेके आओ, ये भी हो सकता है कि बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब कि 10 साल 20 साल 50 साल में तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे, क्लियर। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा मोशन क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, की वेलोसिटी से। दूसरा होता है कि तुम्हारा मोशन का एक्सेलरेटेड हो, यानी जैसे सीधा आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्लियर। मोशन कुछ भी हो सकता है ना, वेरियस टाइप से, एक देखो बहुत धीरे 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 धीरे, क्लियर। एक होता है कि एक्सेलरेटेड मोशन करके आओ, यानी कि जैसे सीधा बढ़ रहा है वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है या तो बढ़ रहा है। एक और मोशन हो सकता है कि वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, यू आर मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी। 3 तरह का मोशन हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन में क्या बता रखा है, डेफिनेशन में क्या होना चाहिए कि योर मोशन शुड बी क्वासी स्टैटिक, your motion should be quasi-static or motion should be non-accelerated, motion should be or velocity should remain constant, means there should be no any change in kinetic energy। तीनों का मतलब ये होता है बाबू कि यहाँ से जब आ रहे हो तो तुम्हारा मोशन quasi-static हो, quasi-static is a process which is very 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 slow process, इतना कि तुम एज्यूम कर लो कितना स्लो हो सकता है। quasi-static process का मतलब ये होता है, एग्जांपल ये quasi-static process का ही बता सकता हूँ कि मान लो कि एक वेइंग मशीन ले, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस पढ़े हो, थर्मोडायनामिक्स में क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स में यूज किया जाता है क्वासी-स्टैटिक, पढ़े हो, मैं नहीं पढ़ाया है ना, दैट इज क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस पढ़ो थर्मोडायनामिक्स में, क्वासी-स्टैटिक, फिर कोई नहीं बोल रहा, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, हाँ नहीं पढ़े। अरे तो सुन मेरी बात, तो 3-4 बार बोलना जरूरी होता है क्या यार, मैं भी इंसान हूं यार, 4 बार बोलूंगा फिर रिप्लाई करते हो, आदत हो चुकी है क्या, एक ही बार में क्यों नहीं रिप्लाई देते, पागल हो जाऊंगा मैं तो। वैसे तुम लोग का एफर्ट नहीं दिखता, कभी जाकर ना पसीना वसीना देखना ना, पूरा पूरा कपड़ा भीग चुका है, और एक बारी बोलता हूँ सुनो, बहुत बहुत वो चीज है, अभी लाइट भी नहीं है, बिना फैन का पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दो, एक बारी कोई चीज हो तो रिएक्ट करो उस पर, 4 बारी बोलने के बाद एक बार जवाब आता है। और कल भी मैंने 3 दिन से ये देख रहा हूं नाटक, तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है देखो,
जैसे तुम क्या कर लो, तुम वेइंग मशीन ले लो, थोड़ा सा सीखो चीजों को। अभी तो ना तुम लोग को बहुत कुछ सीखना है ना, कैसे इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होने चाहिए, किसी से मिलना कैसे है, सीखो ये धीरे धीरे जा करके। नहीं तो बेटा कॉलेज में जाओ इतने मजे लेंगे ना तुमसे कि समझ आ जाएगा, लेकिन सीखो ये सब चीजें सीखो। जिंदगी में बैठा नहीं रहना, कहीं और भी जाना है तुम्हें। देखो ये दिख रहा ना, ये वही मशीन है, अरे तराजू है, तराजू है। यहाँ 1 kg वेट रख दो, 1 kg वेट रख दो, क्लियर। 1 kg यहाँ वेट रखो, और इस पे ना बहुत यहाँ सैंड है, बहुत सारे सैंड है, मालूम कि यहाँ क्या है, बहुत सारे सैंड का ढेर है। सैंड का क्या है बाबू, ढेर है। अब क्या करो, यहाँ से तुम एक एक सैंड का पार्टिकल इसमें उठा के डालो, एक एक सैंड का पार्टिकल उठा के डालो। कितने दिन में 1 kg सैंड कर सकते हो तुम? यहाँ तुम्हें 1 kg सैंड किसी को देना है, 1 kg बालू किसी को देना है, लेकिन देने का तरीका क्या है कि 1 kg वजन का है, ऐसा नहीं कि तराजू लिया ऐसा डाल दिया उसमें और कर दिया, ऐसा नहीं। एक एक पार्टिकल यहाँ से उठा कर रखो, एक सैंड का पार्टिकल रखो फिर यहाँ, एक सैंड का पार्टिकल रखो फिर यहाँ, एक सैंड का पार्टिकल रखो इधर, क्लियर क्लियर। उसके बाद पॉइंटर की रीडिंग चेंज देखनी है। अब मान लो कि यहाँ पर 1 kg, जब यहाँ कोई वेट नहीं है और इधर मतलब यहाँ कोई सैंड नहीं है और यहाँ क्या है 1 kg है, तो तराजू का कैसे होगा, पॉइंटर ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, तो तराजू का पॉइंटर। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पर एक एक सैंड रखो, एक सैंड रखो, और ये बैलेंस जो है इधर जैसे जैसे रखोगे ये इधर जाना शुरू करेगा ना, इसके मोशन को ऑब्जर्व करना। तुम्हें लगेगा कि ये मोशन में है, फील कर सकते हो कि मोशन में है। कैन यू फील इट कि दिस इज इन मोशन? एक ही बार क्या करोगे, इतना उठा कर रख दो, यू कैन फील द मोशन ऑफ दिस पॉइंटर। यहाँ कुछ वेट नहीं रखा है तो ये बैलेंस ऐसे हो गया, ये ऊपर उठ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर एकदम से ऐसे उठा के इतना रख दोगे तो यू कैन फील द मोशन ऑफ पॉइंटर। लेकिन रूल ये नहीं, रूल क्या है कि तुमने एक एक पार्टिकल रखना है, एक एक पार्टिकल रखना है, एक एक पार्टिकल। इसके मोशन को तुम फील कर सकते हो क्या? कैन यू फील द मोशन ऑफ दिस पॉइंटर? सो यस और नो? कैन यू फील द मोशन ऑफ दिस पॉइंटर इफ यू आर पुटिंग वन सैंड पार्टिकल ईच टाइम? कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते हो, गुड। लेकिन अगर मैं इसको यहां रख रहा हूं, मान लो 2 दिन 4 दिन तक रखा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा यार। एक ऐसा टाइम आएगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, चाहे 4 महीने बाद, कि तुम्हारा पॉइंटर क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया ना। मींस फॉर यू द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, सो यू कांट फिगर आउट। लेकिन अगर 2 दिन 4 दिन तक एक एक पार्टिकल रखोगे तो बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं यार, ये पॉइंटर यहां से आएगा ना, यानी कि देयर इज अ मूवमेंट ना, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ना, लेकिन तुम्हें फील नहीं हुआ कि कैसा मूवमेंट हुआ। मींस दिस मूवमेंट इज वेरी 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 स्लो, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? क्लियर? मींस वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस मोशन इज कॉल्ड द क्वासी स्टैटिक मोशन। तो बाबू यहां से यू आर ब्रिंगिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए एंड मोशन शुड बी क्वासी स्टैटिक, मतलब कि तुम्हें बहुत स्लोली लाना है बाबू। योर वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो, इतना स्लोली लाना है कि कोई देख के बताए नहीं कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट मूविंग। वो देख के बताएगा कि यार मोशन में नहीं है ये। फॉर यू गाइस दिस इज नॉन मोशन, ये मोशन में नहीं। गॉट माय? दिस इज द प्रोसेस। सो डेफिनेशन क्या होता है प्रोसेस का? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मोशन शुड बी क्वासी स्टैटिक, मतलब कि बाबू बहुत धीरे धीरे आना चाहिए। देखने वाले लोगों को रेस्ट पे है, पहला चीज। डेफिनेशन नहीं ऐड किया, व्हाई आई एम एडिंग दिस बाद में क्लियर करूंगा। सो मोशन शुड बी क्वासी स्टैटिक या मोशन शुड बी नॉन एक्सेलरेटेड। मान लो कि तुम किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहे हैं, देन योर वेलोसिटी शुड नॉट चेंज। अगर यहां पर तुमने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रखी है तो यहां से यहां में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। योर वेलोसिटी शुड नॉट चेंज। इन अदर यू कैन से दैट योर वेलोसिटी शुड, योर काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दे आर सेम। अगर क्वासी स्टैटिक है मींस योर वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 0, सो के ही हमेशा 0 ही होगा ना, या इफ यानी चेंज इन के भी 0 होगा। If you are moving with constant velocity from infinity to point A, again your velocity is constant, so change in kinetic energy 0. Clear? Third point, your motion should be not accelerated. Means if there is no any acceleration, there is no any change in velocity, again your kinetic energy is constant. So whole idea here, if you are bringing a mass from point infinity to a point A,
in the gravitational field, your kinetic energy of the moving particle should remain constant. This is the basic definition. This is the crucial point. And you have to add this stage in class 12 standard. अगर तुमने ये लिख दिया कि work done in bringing a charged particle or a mass from infinite to a point in the gravitational field or electric field, then the work done will be equal to the gravitational potential energy or electric potential energy. Wholly wrong. Your particle should move, but motion should be such that there should be no any change in kinetic energy. And why I am stressing this point, there should be no any kinetic energy, there should be no any change in kinetic energy. वो क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन ही हमने ये लिया था. क्या लिया था? Got my point? क्लियर? डेफिनेशन क्या है कि डेल्टा यू चेंज इन kinetic energy इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये स्टेटमेंट लेते हो ना बाबू, ये वाला नॉन एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट और क्वासी स्टैटिक, ये तीनों पॉइंट ऐड करोगे तब ये डेफिनेशन वैलिड है. इफ द मोशन इज एक्सेलरेटेड, इफ द प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक, इफ द मोशन इज एक्सेलरेटेड, देन ये डेफिनेशन क्या होगा ही नहीं. तो या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो. इफ योर मोशन इज एक्सेलरेटेड, काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग, मोशन इज नॉट क्वासी स्टैटिक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा होगा नहीं, कुछ और यहाँ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा दोनों में. तो तुम्हारी मर्जी, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो. गॉट माय पॉइंट? मैं प्रूफ दे सकता हूँ. गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? क्लियर? चलो जल्दी लिखो. डन डन बेटे, डन डन कर लिया. So your delta is equal to minus of f external dot dr is equal to minus of f c dot dr. Here I am assuming that your f external should be equal to minus of fc. अब क्लियर हुआ मैं क्यों ले रहा हूं? ये पहला चीज क्लियर हुआ क्यों ले रहा हूं? आई एम टेकिंग, क्योंकि अगर स्लाइटली लोगे, इफ यू आर टेकिंग दिस वन f external is greater than fc, then there will be a net force delta f which is equal to f external minus fc, so there will be acceleration f equal delta f upon m. तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. आई बात समझ? दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग these two quantities same. Got my point? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है? मोशन शुड बी नॉन एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट और क्वासी स्टैटिक. क्लियर? अब क्यों लिया इसका एग्जांपल देख लो. ये डेफिनेशन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच इज द माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी is equal to minus of work done by कंजर्वेटिव. यही है ना बाबू? मीन्स एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट. यही है ना डी आर ना? यही है ना डेफिनेशन? तो ये दोनों इक्वल है, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये दोनों इक्वल है. अब देखो क्लियर? अब देखो होता क्या, मान लो कि तुमने यहां से ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है. नाउ यू आर चेंजिंग दिस, तो इसको मान लो कि द फोर्स इज रिपल्सिव, द टू आर रिपेलिंग, यानी कि इज अप्लाइंग फोर्स ऑन बी इन दिस डायरेक्शन, इधर जाएगा. अब तुम लोग कन्फिगरेशन चेंज करने की तुमने इधर फोर्स अप्लाई किया, सो एफसी इज इन दिस डायरेक्शन एंड एफ एक्सटर्नल इज इन दिस डायरेक्शन. सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बी ना, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन B, two forces are acting on B. Clear? So what? One force is Fc and one force is F external. So work done, total work done on B, total work done on B is equal to work done by Fc plus work done by F external ना. Let us assume this is equal to F WC plus
W external work done by conservative force plus work done by मीटिंग ही ओवर हो गया यार, करो यार क्या करो तो इसको कर लिया बेटे, कर लिया बाबू, कर लिया कर लिया कर लिया ना, कर लिया ये, गुड गुड। So what your delta u is equal to integration AFC dot dr is equal to integration AF external dot dr. So what यहाँ से लिख सकते हो कि your F external is equal to F external dot dr is equal to minus of F C dot dr. Let us say this is F W external work done by external agency is equal to minus of work done by conservative force. So there is a point A and there is a point particle B. So A and B are the particle. Clear? So what? Let us assume the force is repulsive. So FC will be in this direction. Now you want to change the configuration. You have to apply force in this direction. F external. So what? Your FC and F external in the opposite direction. So two forces are acting on B now. Two forces are acting on B. Two forces are acting on B. So total work done on B, total work done on B, WB is equal to W work done by external force plus work done by external conservative force na. There are two forces acting on the B na, FC and F external. So total work done on B is equal to work done by FC and work done by external agency. Is that okay? So this is the, so WB is equal to work done by external force. So work done on B is equal to work done by external agency and work done by conservative force. That's okay. Is that okay? Clear? Now you know your work energy theorem. Your work energy theorem tells that work energy theorem. Your work energy theorem tells that change in kinetic energy delta K is equal to what? Change in kinetic energy is equal to work done. Change in kinetic energy is equal to work done. So if you are talking about B, so total work done on B must be equal to the change in kinetic energy of B na. If you are talking about B, so total work done on B. This is the work energy theorem ना पढ़े हो ना 11th में. This is the work energy theorem. आता है सबको ये? Change in kinetic energy is equal to work done on the system or by the system. Just work done. Clear? Depend करता है देखो. Change in kinetic energy is equal to work done on the system or work done by the system. Depends upon the sign of this K. K positive की negative को define करेगा कि system work कर रहा है, system को work तुम कर रहे हो. Clear? Work done में भी positive, work done में भी negative. Clear? इतना तो पता होना चाहिए. So work energy theorem tells that your change in kinetic energy is equal to work done. So there is a object B. Clear? And total work done on B W is equal to W external plus W C. So apply work energy theorem on B. So what? Total work done on B is equal to change in kinetic energy of B na. So total work done on B is equal to change in K of B na, and total work done on B is equal to W external plus W C, which is equal to delta K. And you know your process is quasi-static. Your motion is non-accelerated. Your velocity is constant. Means delta K for this configuration, this moment B, delta K for moment of B is 0 na, because your process is quasi-static. You are assuming your process is quasi-static or non-accelerated or velocity is constant during motion. Means change in kinetic energy of B is 0 na. Assume किया हो? अरे बाको किया हो ना? So change in K of B is equal to 0. So change in K of B is equal to 0 means W external plus WC is equal to 0. So what? W external is equal to minus of WC. क्लियर? याद है ये पहले जो स्टेटमेंट लिया था. सर ये जो तुमने स्टेटमेंट देखो बाबू, मतलब ये कि जहां शुरू करते वही पहुंचना पड़ता है. जहां शुरू किया वही पहुंचना पड़ता है. अपना डेफिनेशन क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द
एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स द एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ सी, यही आया था यहाँ से ना, तो यही रूल फॉलो करके बाद हमें यही मिला ना। इधर ओके ऐसे थोड़ी कि यहाँ डिफाइन कुछ और किया है, यहाँ हियर टू क्वांटिटी आर इक्वल, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ सी, यहाँ दोनों इक्वल है। अब फिर काम करो तो फिर वही आना चाहिए ना। इधर ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट हमने डाल दिया कि मोशन शुड बी क्वासिस्टैटिक और नॉन एक्साइटेड और वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? अगर इफ योर वेलोसिटी इज नॉन जीरो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यू, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज नॉन जीरो, मींस योर डेल्टा के विल बी आल्सो नॉन जीरो। अगर डेल्टा वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी नॉन जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो ये डेफिनेशन है बाबू, ये नहीं हो सकता है। मींस अगर ये ऐसा है देन दिस इज नॉट पॉसिबल। डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, ये नहीं होगा। और ये जो डेफिनेशन लिखते हो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर नॉट इक्वल टू एफ सी डॉट डी आर, ये रूल वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फिर आगे कुछ अलग सा ऐड टर्म ऐड करना पड़ेगा। कैसे होगा वो भी बता दूंगा मैं। आ ये बात समझ? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं? अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? लिखो थोड़ा सा ना समझो, होगा कि देखो कई को जहर भी लग सकता है, तो कीप दिस इन माइंड। कईयों का जहर का काम करेगा, सो घर पे पढ़ाई करो, डीप में जाओ। खाली सुंदर सुंदर डेफिनेशन लिखने से और पढ़ने से नहीं होगा। लाइफ में प्लस 2 के बाद भी पढ़ना है आगे, तो उसके हिसाब से कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर? और खास करके इंडिया जैसे देश में हो तो कर लिया बाबू। डन क्लियर? तो देखो बाबू, मीन्स इफ योर, मतलब कि ये ए और बी है, क्लियर, और यू आर चेंजिंग द मोशन, बी में मोशन में है, मतलब यू आर चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन। स्वाट एक तो होगा एफ सी, अगर माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल लेते हो देन डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, सो डेल्टा के विल बी जीरो। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी थ्योरम योर डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो, सो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, और तुम्हारा एडिफिनेशन हो जाएगा वर्क डन इसका डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, ये हो जाएगा। इफ योर दिस इज नॉट ए, यानी कि इफ एफ सी नॉट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्लियर, then there will be some acceleration, so there will be some change in velocity will be non-zero, so what change in kinetic energy will be also non-zero and acceleration will be also non-zero ना। क्लियर? if the two forces are not equal, ये कंडीशन हो जाएगा। उसी केस में क्या होगा? थ्योरम W external इक्वल टू माइनस W external प्लस WC इक्वल टू डेल्टा के एंड दिस इज नॉन-जीरो, so what W external इक्वल टू डेल्टा के माइनस WC ना। यानी कि तुम जो भी वर्क करोगे वो कहाँ चला जाएगा? एक तो पोटेंशियल एनर्जी, जो भी वर्क करोगे, मान लो पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू की इक्वल है, तो तुम जो भी वर्क करोगे वो दो पार्ट में जाएगा। एक तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, दूसरा उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा ना। इफ एक्सटर्नल एजेंसी डूइंग वर्क, तो वर्क दो पार्ट में होगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाएगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा। सो यू कांट इक्वेट द टू ना। इधर ओके आ रही बात समझ? अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नॉन जीरो है तो तुम जो भी वर्क करोगे वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम और दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम। आ रही बात समझ? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर बको? क्लियर? तो ये है क्लियर। तो ये इसलिए हम अपन लेते हैं ये, और यही डेफिनेशन होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए point charge or point mass from infinite to a point in the gravitational field or electric field, but motion should be quasi-static or non-accelerated, or velocity should remain, or kinetic energy should not change during the motion. This is the crucial point. Clear? ये proof तुमने नहीं करना है, ये सब तो संस्कृत में समझ आना चाहिए, सब समझने के लिए था। This is not in your syllabus, in your NCERT book नहीं है वो, इसी बार में थोड़ा बहुत दे रखा है। क्लियर? सो ये है, अब समझना बहुत जरूरी है, फील आनी चाहिए, और मैं ये सारा चीज़ एप्लीकेशन करूंगा आगे। क्लियर? अभी मैं कल ड्राइव करूंगा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ये सब चीज़ें, ये बैकग्राउंड था। क्लियर? सो हमने क्या क्या पढ़ लिया? योर पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू कॉन्फिगरेशन
एंड ऑल्सो ड्यू टू इंटरेक्शन। क्लियर, पोटेंशियल हमेशा सिस्टम को होता है, पार्टिकल का नहीं होता है। और क्या था, हाँ, एंड इफ यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग द चेंजिंग प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक, नॉन एक्सेलरेटेड, और वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट चेंज। क्लियर, ये सारी चीजें हैं। क्लियर, तो बाकी करने नेक्स्ट क्लास में मैं ये कंटिन्यू करूंगा। क्लियर, तो लिख लो।